Everything in this world wants stability, and so is the case with atoms. For atoms, stability means having the electron arrangement of an inert gas, that is octet, in its outermost shell. Helium, for that matter, has 2 electrons, duplet, while all other inert gases, neon, argon, krypton, xenon, radon, they have 8 electrons or octet in their outermost shell, as given in the table below. So as you can see in this table, these are inert gases: helium, neon, argon, krypton, xenon, radon. What are their atomic numbers? 2, 10, 18, 36, 54, 86. Any need to remember? Only up to argon or maximum krypton, not beyond that. But the important thing here to understand is their electronic configuration. Helium has one shell, and in that one shell it has 2 electrons. So it has its outermost shell completely filled. It has a duplet. Neon, on the other hand, has 2 shells, and in the outermost shell of neon there are 8 electrons. That means an octet. Argon, the electronic configuration is 288, krypton 28188, xenon 28188, radon 2818328. All the inert gases except helium has 8 electrons in their outermost shell. Helium has 2 electrons, but nonetheless all the inert gases has completely filled outermost shell. Now what does this mean for an atom? This atom has completely filled outermost shell. That means it will be inert. Inert means it will be non-reactive. That means it will neither want to donate electron nor it will want to accept electron. We have studied chemical combination or chemical bonding in class 9th, and this is the same chapter of chemical bonding, but in little bit more detail. But the core of the chapter begins from the topic that why any atom in the world would want to bond in order to achieve stable electronic configuration. Any element would want to achieve stability. Stability means stable electronic configuration. Stable electronic configuration means outermost shell completely filled, either a duplet or an octet, right? Whenever the outermost shell is completely filled, like helium or like neon, argon, krypton, xenon, radon, the element becomes stable, chemically stable, and does not want to react with any other element or atom of any other element or with any other compound, right? So the only criteria for all the atoms in the whole universe is to achieve stability, right? And stability, with stability we mean stable electronic configuration. So to achieve this stability, chemical bonding takes place. So cause of chemical combination is the tendency of elements to acquire the nearest noble gas configuration in their outermost orbit and become stable. So how do they become stable? They acquire the electronic configuration of their nearest noble gas. They acquire the electronic configuration of their nearest noble gas in their outermost orbit and become stable. तो मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ. इस एग्जांपल के लिए हमें पीरियोडिक टेबल को यहाँ पे लाना पड़ेगा. ठीक है, 1 मिनट में लेके आता हूँ. सो हियर इज योर पीरियोडिक टेबल. अब पीरियोडिक टेबल में अगर तुम देखोगे स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं वो कहाँ पे पाए जाते हैं, इनको ज़रा हम लोग आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं. ये कहाँ पे पाए जाते हैं स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन वाले एलिमेंट्स? दे आर ऑल, दे एग्जिस्ट ओवर हियर. यू सी देम इन ग्रुप नंबर 18.
हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। तो बाकी जितने भी एलिमेंट्स है पीरियोडिक टेबल में, दे वांट टू बिकम लाइक देम। ये जो एलिमेंट्स है पीरियोडिक टेबल में, नोबल गैसेस, ये उनके लिए आइडियल है। आइडियल, आइडियल पता है ना क्या होता है? आइडियल, जब तुम बोलते हो कि मेरा आइडियल, आइडियल मतलब आदर्श बालक। बहुत लोग ये कॉन्सेप्ट जानते नहीं आदर्श बालक का, लेकिन आदर्श बालक, सारे मम्मी डैडी चाहते हैं कि हमारा बच्चा आदर्श बालक बने। वैसे ही सारे एलिमेंट्स चाहते हैं कि हम आइडियल, आदर्श एटम बने, आदर्श इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, आइडियल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, और स्टेबिलिटी अचीव करें हम लाइफ में। तो ये बेचारे एटम्स इसके पीछे लगे रहते हैं, ठीक है। बट ये इनका आइडियल कौन है? जैसे कि कोई भी उठ के नहीं बोल सकता कि मेरा आइडियल आज से नियॉन है। जैसे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन सुबह उठा बोला मैं तो आज नियॉन जैसा बनना चाहूंगा। अबे तू कैसे बनेगा नियॉन जैसा? तेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन है? एक इलेक्ट्रॉन है। नियॉन के पास देख जाके कितने इलेक्ट्रॉन है? 10 इलेक्ट्रॉन है। आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है। कहां से लाएगा 8 इलेक्ट्रॉन? तेरे पास तो शेल भी एक है, उसमें तो 2 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा रह नहीं सकते। तो हर एक एलिमेंट आइडियल एलिमेंट अपना अपना चूज कर लेता है। कैसे? एवरी एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल tries to become like tries to achieve an electronic configuration like their nearest noble gas। वो अपने नियरेस्ट, सबसे नजदीक वाले नोबल गैस जैसा बनना चाहे। तो मैं हाइड्रोजन की बात कर रहा था, तो हाइड्रोजन का आइडियल नोबल गैस नियॉन नहीं हो सकता, आर्गॉन नहीं हो सकता, क्रिप्टॉन नहीं हो सकता, वो सारे बहुत दूर है। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, उससे सबसे नियरेस्ट एटॉमिक नंबर किसका है? हीलियम का। तो हाइड्रोजन का आइडियल नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कौन सा होना चाहिए? किसका होना चाहिए? किसके जैसा होना चाहिए? हीलियम जैसा होना चाहिए। तो लेट्स टॉक अबाउट दिस मोर। तो अपना हाइड्रोजन है, राइट? हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है? 1। इसके पास प्रोटॉन्स कितने? 1। इलेक्ट्रॉन्स कितने? 1। न्यूट्रॉन्स कितने? 0। ठीक है। हाइड्रोजन का एटम दिखता कैसा है? तो ये उसकी न्यूक्लियस है, और ये एक शेल है उसके पास, और एक शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है। अब दिखता ऐसा है, वो एक ही शेल है उसके पास, तो वो नियरेस्ट नोबल गैस जैसा बनने की कोशिश करेगा, क्योंकि अभी तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है 1, और 1 कोई स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन नहीं है। तो वो बनना चाहेगा किसके जैसा? हीलियम जैसा। हीलियम के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है इसका 2, और 2 का मतलब होता है ड्यूप्लेट। क्या मतलब होता है? ड्यूप्लेट। तो हाइड्रोजन हीलियम जैसे बनने की कोशिश करेगा। कैसे करेगा? इजी है ना हाइड्रोजन के लिए। एक इलेक्ट्रॉन कहीं से हाइड्रोजन को मिल जाए, कोई अगर एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को दे दे, डोनेट कर दे, तो हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट हो जाएगा, आउटर मोस्ट शेल फिल्ड हो जाएगा, और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हीलियम जैसा हो जाएगा। और यही तो वो चाहता है। इसलिए हाइड्रोजन का आइडियल, जो क्या बोलते हैं कि तुम जब कोई भी गोल सेट करते हो ना, कि मुझे लाइफ में ये मेरा गोल है, तो वो गोल क्या होना चाहिए पता है? रियलिस्टिक होना चाहिए। ठीक है। सपोज कोई बच्चा है तुम्हारे क्लासरूम में, उसको 60% आता है, तो उसका गोल सेटिंग होना चाहिए कि चलो मुझे नेक्स्ट एग्जाम में 70% लाना है, 65 लाना है, 70 लाना है, 75 ज्यादा से ज्यादा। वो ये नहीं बोल सकता कि अब मैं नेक्स्ट एग्जाम में, आज मेरे 60% आए, अब मैं बिल्कुल नेक्स्ट एग्जाम उसमें मैं 98% लाऊंगा। ऐसा हो सकता है? नहीं। तो ये आइडियल गोल सेटिंग नहीं है। ठीक है। जब तुम्हें आइडियल या प्रॉपर गोल सेटिंग करनी है, तो तुम बहुत ही छोटा, नियर बाय अचीवेबल टारगेट चूज करोगे। तो वैसे ही हाइड्रोजन के लिए जो अचीवेबल टारगेट है, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ हीलियम। तो वो हीलियम जैसे बनने की कोशिश करेगा। इट विल ट्राई टू अचीव एन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ हीलियम, दैट इज अ ड्यूप्लेट, राइट? अच्छा, मैं तुम्हें पूछता हूं अब, टेबल देख के बताओ, लिथियम किसके जैसे बनने की कोशिश करेगा? मेरा जो एलिमेंट है जिसकी मैं बात कर रहा हूं, दैट इज लिथियम ओवर हियर। ठीक है। लिथियम किसके जैसी बनने की कोशिश करेगा? अच्छा, तुम्हारे आइडियल है यहाँ पे, ये लास्ट ग्रुप 18 में
और लिथियम है बेचारा यहाँ पे। ठीक है, अब तुम्हारे पास मैं ऑप्शन दे रहा हूं दो। ठीक है, एक पहला ऑप्शन है लिथियम बनने की कोशिश करेगा हीलियम जैसा, या फिर वो बनने की कोशिश करेगा नियॉन जैसा। चलो तीसरा ऑप्शन भी दे देता हूं, आर्गन जैसा। अच्छा, हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 2। नियॉन का क्या है? 2,8। आर्गन का क्या है? 2,8,8। और लिथियम का क्या है? 2,1। ठीक है, अब देखो अचीवेबल आइडियल टारगेट उसके लिए, मतलब जो आदर्श एटम है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में नोबल गैस, वो कौन है उसके लिए? हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है? देखो देखते हैं। लिथियम के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, हीलियम में आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। मतलब अगर ये लिथियम एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे, जो ग्रुप 1 का एलिमेंट होते हुए वो इजीली कर सकता है, तो वो हीलियम जैसा बन जाएगा। नियॉन जैसा बनने के लिए उसको आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, मतलब वो 7 इलेक्ट्रॉन उसको कोई डोनेट करना चाहिए, तब जाके वो बनेगा लिथियम जैसा, सॉरी नियॉन जैसा। और लिथियम को अगर आर्गन बनना है तो 7 इलेक्ट्रॉन तो चाहिए आउटर मोस्ट शेल में, लेकिन और एक शेल भी बनाना पड़ेगा और उसमें 8 इलेक्ट्रॉन भरने पड़ेंगे, जो बिल्कुल इम्पॉसिबल दिखता है। मतलब आर्गन तो है ही नहीं आइडियल इसके लिए। अब बचे दो कंटेंडर। देखो, नियॉन है, नियॉन में क्या हो जाएगा कि उसको 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए। क्या लिथियम को कोई 7 इलेक्ट्रॉन्स देगा अपने? बिल्कुल नहीं दे सकता। 7 इलेक्ट्रॉन इतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, कभी भी देखो इलेक्ट्रॉन कभी डोनेट होते हैं 1, 2 या 3 से ज्यादा डोनेट नहीं हो सकते। एक्सेप्ट होते हैं तो 1, 2, 3 से ज्यादा एक्सेप्ट नहीं हो सकते। शेयर होते हैं तो 1, 2, 3 से ज्यादा शेयर नहीं हो सकते। 7 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना या किसी के लिए डोनेट करना क्या कोई खाने की बात है? नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। तो नियॉन इज नॉट, एब्सोल्युटली नॉट आइडियल और अचीवेबल टारगेट। सो भाई लिथियम के लिए आइडियल कौन है? हीलियम। लिथियम किसकी तरह बनना चाहेगा? हीलियम। लिथियम के लिए किसका इलेक्ट्रॉनिक अचीव करना आसान है? हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अचीव करना आसान है। तो लिथियम ये कैसे, अभी मैं तुम्हें बताता हूं। मैं यहाँ पे और एक चीज हमने पढ़ी थी कि एलिमेंट्स ट्राई टू अक्वायर द नियरेस्ट नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन देयर आउटरमोस्ट ऑर्बिट एंड बिकम स्टेबल। अब ये भी इजी है इसको पता लगाना कि लिथियम से नियर बाय कौन है, नियरेस्ट कौन है। देखो, लिथियम का एटॉमिक नंबर क्या है? 3। हीलियम का क्या है? 2। नियॉन का क्या है? 10। आर्गन का क्या है? 18। 3 2 से ज्यादा करीब है, या 3 10 से ज्यादा करीब है, या 3 18 से ज्यादा करीब है? ऑफ कोर्स 2 से। सो लिथियम हीलियम की तरह बनने की कोशिश करेगा तो सक्सेसफुल रहेगा, क्योंकि दैट इज द नियरेस्ट नोबल गैस टू लिथियम, राइट। तो तुम्हें ये देखना है कि नियरेस्ट नोबल गैस, भले लिथियम लेफ्ट साइड पे रहे पीरियोडिक टेबल के, नियर मतलब ऐसा बाजू बाजू में होना जरूरी नहीं है, लेकिन हीलियम लिथियम के बिल्कुल पहले वाला एलिमेंट है और बिल्कुल नियरेस्ट नोबल गैस है लिथियम से। इसलिए लिथियम हीलियम जैसा बनने का कोशिश करेगा तो वो सक्सेसफुल रहेगा, बिकॉज दैट इज एन अचीवेबल आइडियल टारगेट फॉर लिथियम। अभी समझ में आया? तो मुझे बताओ कि अब इतना डिस्कशन किया हमने, तो बताओ सोडियम के लिए अचीवेबल टारगेट क्या होना चाहिए? मैं तुम्हें 3 ऑप्शन देता हूं। सोडियम के लिए अचीवेबल टारगेट क्या होना चाहिए? सोडियम नियॉन की तरह भी बनने की कोशिश करेगा, या आर्गन की तरह बनने की कोशिश करेगा, या क्रिप्टॉन की तरह बनने की कोशिश करेगा? सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या है? 11। नियॉन का क्या है? 10। आर्गन का 18। क्रिप्टॉन का 36। क्रिप्टॉन तो बहुत दूर है, आर्गन भी बहुत दूर है, नियॉन उससे बिल्कुल कम नजदीक है। तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2,8,1। नियॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2,8। सोडियम एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करके नियॉन जैसा बनने की कोशिश करेगा इजीली, और बन भी जाएगा। तो हमेशा कोई भी एलिमेंट अपने नियरेस्ट नोबल गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अचीव करने का कोशिश करता है। मैं और एक नॉन मेटल का एग्जांपल लेके यहाँ पे इसको कंक्लूड करता हूँ। ठीक है, ये जो मैं डिस्कशन कर रहा हूँ इसको मैं कंक्लूड करना चाहता हूँ अभी। ठीक है, सो नेक्स्ट एग्जांपल जो मैं लेने वाला हूँ वो है क्लोरीन का। क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2,8,7, बिकॉज उसका एटॉमिक नंबर है 17। क्लोरीन से सबसे नजदीक वाला जो नोबल गैस है वो कौन सा है? नियॉन है, आर्गन है, क्रिप्टॉन है? ऑफ कोर्स आर्गन है, क्योंकि आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2,8,8।
तो क्लोरीन आर्गन जैसा बनने की कोशिश करेगा और सक्सेसफुल भी होगा। क्यों? क्योंकि क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, आर्गन के आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स है, एंड इट इज वेरी इजी फॉर क्लोरीन टू एक्सेप्ट 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एनी अदर atom of an element and achieve stable electronic configuration which is just like argon. So chlorine will try to become like argon and achieve stability. So hence it is proved that elements in the periodic table, elements, whichever elements are there here in the periodic table, they will try to achieve the electronic configuration of their nearest noble gas and achieve stability, because all the elements in the world, entire universe, they are looking for stability, and that is the core reason for chemical bonding. अब ये stability achieve कैसे करना है, इसके ऊपर पूरा chapter है. The whole chapter is based on the topic that how elements achieve the stable electronic configuration, and the method is known as chemical bonding. So chemical bond में होता क्या है? During redistribution of electrons, a bond or a force of attraction develops between the atoms, which binds them together to form molecule. केमिकल बॉन्ड का आउटकम क्या है कि मॉलिक्यूल बन जाते हैं। दो एलिमेंट के बीच में जब केमिकल बॉन्ड होता है, बॉन्ड मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो वो दोनों एलिमेंट को एक साथ रखता है, राइट? और उससे क्या बना देता है? केमिकल बॉन्ड. अ केमिकल बॉन्ड मे बी डिफाइंड एज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू एटम्स इन अ मॉलिक्यूल टू मेंटेन स्टेबिलिटी. केमिकल बॉन्ड क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू एटम्स. प्लीज नोट कर लेना डेफिनेशन को. डेफिनेशन सारी मेमोराइज करनी है, और टेक्स्ट बुक लैंग्वेज में ये जो की वर्ड्स बता रहा हूं मैं, वो टेक्स्ट बुक लैंग्वेज में तुम्हें रिमेंबर करनी है डेफिनेशन. तुम अपने वर्ड्स में कुछ भी लिख के आ जाओगे एग्जाम में, तुम्हें मार्क्स नहीं मिलेंगे. ना बोर्ड्स देगा, ना मैं दूंगा मार्क्स, ना स्कूल देगी मार्क्स. इसलिए टेक्निकल वर्ड्स बहुत जरूरी है. केमिकल बॉन्ड क्या है? इट इज डिफाइंड एज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू एटम्स इन अ मॉलिक्यूल टू मेंटेन स्टेबिलिटी. तो होता कैसे है? केमिकल बॉन्ड बनता कैसे? 3 मेथड है हमारे पास, हमें तीनों मेथड पढ़नी है. 3 मेथड्स in which atoms can achieve stable electronic configuration. Number 1 is transfer of one or more electrons from one atom to another to form an electrovalent or an ionic bond. ठीक है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट में, और उससे बनता है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या फिर आयोनिक बॉन्ड. इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफर होने से बॉन्ड बनता है, ये पहले टाइप का बॉन्ड है. सेकेंड टाइप का बॉन्ड, शेयरिंग ऑफ 1, 2 और 3 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन. दो एटम्स के बीच में 1, 2 या 3 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन जब शेयर होते हैं तो कोवेलेंट या फिर मॉलिक्यूलर बॉन्ड बनता है. तो पहला कौन सा बॉन्ड है? इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड. कैसे बनता है? बाय ट्रांसफर ऑफ 1 और मोर इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम. एंड सेकेंड कौन सा है? कोवेलेंट बॉन्ड. कैसे बनता है कोवेलेंट बॉन्ड? बाय शेयरिंग 1, 2 और 3 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन 2 एटम्स. ठीक है? तो ये 2 टाइप के. और तीसरा टाइप का जो हमें पढ़ना है, जो नया है, नई चीज है तुम्हारे लिए, एक्चुअली तुम ऑलरेडी पढ़ चुके हो क्लास 9th में, व्हाट इज इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, व्हाट इज कोवेलेंट बॉन्ड. बट जो न्यू टाइप ऑफ बॉन्ड है जो हम लोग अभी डिटेल में पढ़ने वाले इस चैप्टर में, दैट इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड और डेटिव बॉन्ड. कोऑर्डिनेट और डेटिव बॉन्ड. कैसे बनता है कोऑर्डिनेट और डेटिव बॉन्ड? व्हेन शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर कंट्रीब्यूटेड बाय ओनली वन ऑफ द कंबाइनिंग एटम्स, द बॉन्ड फॉर्म्ड इज नोन एज कोऑर्डिनेट और डेटिव बॉन्ड. इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे एट द एंड ऑफ द चैप्टर आफ्टर स्टडिंग आयोनिक एंड कोवेलेंट बॉन्ड. तो अभी मैं इतना डिटेल में कोऑर्डिनेट के बारे में तुम्हें नहीं बता रहा हूं, बिकॉज द रीजन इज कोई मतलब नहीं है अभी. सिर्फ इतना समझ लो कि इलेक्ट्रॉन्स जो शेयर होते हैं वो सिर्फ एक एटम शेयर करता है, जो दूसरा एटम है वो शेयर नहीं करता इलेक्ट्रॉन, क्योंकि उसको जरूरत है. ठीक है? तो इलेक्ट्रॉन रहते हैं अपने ओरिजिनल एटम के पास ही, लेकिन शेयरिंग होती है दूसरे के साथ भी. ठीक है? तो ये क्यों होता है, कैसे होता है, ये हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे व्हेन वी स्टडी द स्ट्रक्चर एंड द एग्जांपल्स ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड. नाउ आई थिंक वी शुड मूव अहेड एंड स्टडी इलेक्ट्रोवैलेंट और आयोनिक बॉन्ड. तो देखो, एटम्स के आउटर मोस्ट शेल में, एटम्स जो मेटालिक एलिमेंट्स के होते हैं, सॉरी मेटल के जो एटम्स होते हैं, उनके आउटर मोस्ट शेल में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. तो उनका क्या कोशिश रहता है? मैंने तुम्हें अभी बताया था भाई. उनका जो कोशिश रहता है, यहां पे देख लो तुम्हें समझ में आ जाएगा. उनकी जो कोशिश होती है, उनका जो टेंडेंसी होता है, दैट इज टू अचीव स्टेबिलिटी.
and to become like their nearest noble gas. But how do they do that? ग्रुप नंबर 1 में देख लो, ग्रुप नंबर 2 में देख लो, ग्रुप नंबर 3 तो नहीं बोलूंगा लेकिन 13 बोलूंगा, उसमें कुछ एटम्स को देख लो। वो लोग क्या करते हैं पता है? दे ट्राई टू डोनेट, दे ट्राई टू लूज देयर आउटर मोस्ट, द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन देयर आउटर मोस्ट शेल। जैसे कि सोडियम, सोडियम क्या करेगा? सोडियम अपने आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन है उसको डोनेट करने की कोशिश करेगा। तो मेटल है सोडियम, इसलिए वो कर रहा है ऐसा। मैग्नीशियम अपने आउटर मोस्ट शेल के 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की कोशिश करेगा। एल्यूमिनियम अपने आउटर मोस्ट शेल के 3 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की कोशिश करेगा। लेकिन ये तो हो गई मेटल्स की बात। मेटल्स के आउटर मोस्ट शेल में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये बात सही है। और ये 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स को मेटल्स डोनेट करने की कोशिश करते हैं, ये भी बात सही है। नॉन मेटल्स क्या करते हैं? तो मैं ये ब्रिज एलिमेंट्स की बात नहीं करूंगा, सीधा जाऊंगा फॉस्फोरस पे। फॉस्फोरस के आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है। तो वो क्या करेगा पता है? वो आर्गन जैसे बनने की कोशिश करेगा। उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉस्फोरस का 285 है, आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 288 है। तो जब फॉस्फोरस आर्गन जैसी बनने की कोशिश करेगा तो उसको 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए रहेंगे। इट वुड रिक्वायर 3 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटर मोस्ट शेल। सो वो एक्सेप्ट करने की कोशिश करेगा किसी से 3 इलेक्ट्रॉन, किसी एक से या 3 अलग अलग एटम से, दैट डजंट मैटर, बट वो 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके आर्गन जैसा बनने की कोशिश करेगा। सल्फर जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2,8,6, वो 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके स्टेबिलिटी अचीव करने की कोशिश करेगा। क्लोरीन जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2,8,7, वो 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी अचीव करने की कोशिश करेगा। सो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है कि सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके स्टेबल होना चाहते हैं। फॉस्फोरस, सल्फर और क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को गेन करके स्टेबल होना चाहते हैं। और इससे हमें एक पैटर्न समझ में आती है कि सारे मेटल्स के आउटर मोस्ट शेल में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सारे मेटल्स। और ये सारे मेटल्स इलेक्ट्रॉन 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करके आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी अचीव करते हैं। सारे नॉन मेटल्स के आउटर मोस्ट शेल्स में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, आई एम सॉरी 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, कार्बन एक एक्सेप्शन है, उसमें 4 इलेक्ट्रॉन है और वो डोनेट या एक्सेप्ट बहुत रेयरली करता है, वो शेयरिंग करता है, उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं आगे। लेकिन जनरली नॉन मेटल्स के आउटर मोस्ट शेल में 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। वो 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन्स के साथ ये क्या करते हैं? ये उनको डोनेट नहीं करते, ये उनको एज इट इज रखते हैं। ऊपर से ये 3, 2 या 1 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके स्टेबिलिटी अचीव करते हैं। तो नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके स्टेबिलिटी अचीव करते हैं, मेटल्स इलेक्ट्रॉन डोनेट करके स्टेबिलिटी अचीव करते हैं। और इससे हमारा बॉन्ड, पहले टाइप का बॉन्ड, नंबर 1 बॉन्ड, दैट इज इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड आता है। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड में याद रखना, मेटालिक एटम क्या करता है? मेटालिक एटम इलेक्ट्रॉन को लूज करता है। मेटालिक एटम क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को लूज करता है और वो क्या बन जाता है? पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन। मेटालिक एटम इलेक्ट्रॉन को लूज करके पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन, कैटायन बन जाता है। नॉन मेटालिक एटम ऑन द अदर हैंड इलेक्ट्रॉन को गेन करता है और नेगेटिवली चार्ज्ड आयन बन जाता है और उसको एनायन बोलते हैं। तो आयन क्या है? अब तुम बोलोगे सर ये नई स्टोरी कहां से आ गई? स्टेबिलिटी तो अचीव कर ली ना, अब हमें क्या करना है? इसका आयन बने ना बने? नहीं भाई नहीं, स्टेबिलिटी अचीव कर ली, लेकिन जब तक स्टेबिलिटी कैसे अचीव की इसको समझोगे और स्टेबिलिटी अचीव करने के बाद क्या हुआ उसको नहीं समझोगे तो ये स्टोरी अधूरी है। तो मैं तुम्हें यहां पे क्लियरली बताता हूं विथ अ प्रॉपर एग्जाम्पल। A proper example which I can give you is of sodium. सोडियम का जो एटॉमिक नंबर है वो है 11। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 281। ठीक है, सोडियम क्या करता है? सोडियम इनिशियली इसके पास, लेट मी ड्रॉ सम बिगर सर्कल्स। इनिशियली सोडियम के पास 11 प्रोटॉन्स होते हैं, एटॉमिक नंबर 11 है, और 12 न्यूट्रॉन्स होते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स भी उसके पास 11 है। तो ये फर्स्ट शेल है सोडियम का, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे
ये सेकेंड शेल है सोडियम का, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे और ये थर्ड शेल है सोडियम का जिसमें सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है। मतलब उसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो है 281। अब क्योंकि सोडियम मेटल है, उसकी टेंडेंसी है नियरेस्ट नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अचीव करना और नियॉन की तरह बन जाना। क्योंकि वो नियॉन की तरह, नियॉन जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8 बनना चाहता है, तो वो एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देंगे। ठीक है, तो इसमें से 1 इलेक्ट्रॉन माइनस हो जाएगा और हमारे पास जो एटम बचेगा वो एटम नहीं होगा, वो आयन होगा। मैं तुम्हें बताता हूं वो आयन कौन सा होगा, कैसा दिखेगा, क्या करेगा। अब ये जो आयन बनेगा वो एटम ही है, वो एटम ही है, लेकिन क्या है उसमें चेंज देखो। 11 प्रोटॉन्स, 12 न्यूट्रॉन्स जस्ट लाइक अर्लियर। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन जस्ट लाइक अर्लियर। सेकेंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन जस्ट लाइक अर्लियर। ठीक है, एंड थर्ड शेल गायब हो गया। थर्ड शेल है ही नहीं, क्यों? क्योंकि उसने एक इलेक्ट्रॉन जो था थर्ड शेल में उसको डोनेट कर दिया। और शेल कुछ नहीं होता, शेल तो इमेजिनरी पाथ होती है। इलेक्ट्रॉन चला गया, इमेजिनरी पाथ गायब हो गई। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना हो गया? 2,8 हो गया ना। अब सोडियम दिखता है बिल्कुल नियॉन जैसा। तो सोडियम तो नियॉन बन गया। अब नहीं, सोडियम नियॉन नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि नियॉन का एटॉमिक नंबर है 10, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2,8, प्रोटॉन्स है इसके पास 10 और इलेक्ट्रॉन्स इसके पास कितने हैं? 10। सोडियम आयन, ये क्या है? सोडियम आयन या फिर कैटायन ऑफ सोडियम। ठीक है, ये जो सोडियम आयन है इसकी खासियत क्या है? इसके पास प्रोटॉन्स है 11, इलेक्ट्रॉन्स है 10। कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 10। ठीक है, तो अगर तुम इसको गौर से देखोगे, न्यूट्रॉन्स का कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके सामने देखो भी मत अभी। अगर तुम ध्यान से देखोगे इसको, तो इलेक्ट्रॉन्स एक कम है, प्रोटॉन से एक इलेक्ट्रॉन कम है। नंबर ऑफ प्रोटॉन इज 1 मोर देन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन तो माइनस हो गया ना, चला गया, डोनेट हो गया। तो ओवरऑल ये जो सोडियम का आयन है, इसको आयन क्यों बोलते हैं इसका रीजन अब पता चलेगा तुम्हें। ओवरऑल इस सोडियम के आयन में एक पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है एक नेगेटिव चार्ज से, इसलिए ओवरऑल ये पॉजिटिव चार्ज, सिंगल पॉजिटिव चार्ज एग्जिबिट करता है, सिंगल पॉजिटिव चार्ज की तरह बिहेव करता है। सो दिस इज अ चार्ज्ड एटम, और चार्ज्ड एटम को ही क्या बोलते हैं? आयन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आयन। सो ये सोडियम का आयन है, करेक्ट। अच्छा आप देखो, जरा ध्यान से सुनना इसको। ये तो हो गया सोडियम का आयन, सोडियम का कैटायन जिसके पास एक सिंगल पॉजिटिव चार्ज है। लेकिन ये स्टोरी यहां खत्म नहीं होती। हम लोगों को सोडियम का पता चला, लेकिन और भी ऐसे एलिमेंट्स है, हम नॉन मेटालिक एलिमेंट्स की भी बात करते हैं, तो ही हमारा ये जो स्टोरी है इलेक्ट्रोवायलेंट कंपाउंड का वो कंप्लीट होगा। तो नॉन मेटल में एक कोई एग्जांपल लेते हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ क्लोरीन। ठीक है, अभी क्लोरीन का जो एटम है उसका एटॉमिक नंबर क्या है? 17। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 287। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 17। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं? प्रोटॉन्स इसके पास 17 है। न्यूट्रॉन्स इसके पास 35 भी होते हैं, सॉरी, न्यूट्रॉन्स इसके पास 18 भी होते हैं, 20 भी होता है। मैं अभी 18 गिनता हूं, ठीक है। सो क्लोरीन का जो एटम है वो कैसा दिखता है? ये उसकी न्यूक्लियस है जिसमें प्रोटॉन्स 17 है, न्यूट्रॉन्स 18 है। अब कोई पूछेगा क्यों न्यूट्रॉन्स 18 होता है? भाई ये तो ऐसा ही होता है, इसका स्ट्रक्चर है वैसा। इसका आंसर नहीं है अपने पास। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकेंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स,
थर्ड शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स है, 287. This is how chlorine atom looks like. This is atom of chlorine. ठीक है, अब ये एटम क्या करता है, ये बनना चाहता है आर्गन की तरह. आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 288. नियरेस्ट नोबल गैस है क्लोरीन का. कैसे बनेगा आर्गन की तरह, तो देखो इसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, इसका आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है. आउटर मोस्ट शेल कंप्लीटली फिल्ड है आर्गन का. तो ये एक इलेक्ट्रॉन कहीं से डोनेट कहीं से एक्सेप्ट करने की कोशिश करेगा. तो समझो इसको कहीं से एक इलेक्ट्रॉन मिल गया, +1 इलेक्ट्रॉन कहीं से इसको मिल गया. तो ये क्या बन जाएगा, अब ये बन जाएगा क्लोरीन का आयन, जिसके प्रोटॉन्स कितने होंगे, 17. न्यूट्रॉन्स कितने होंगे, 18. प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कोई फर्क नहीं पड़ता यार, फर्क किधर पड़ता है, इलेक्ट्रॉन्स में. 2 8 एंड आउटर मोस्ट शेल कंप्लीटली अब क्या हो चुका, फील्ड, क्योंकि फिल्ड हो गया, क्योंकि उसने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया. तो आउटर मोस्ट शेल में 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन हो गए. लेकिन अब तुम बोलोगे सर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो 2,8,8 हो गया, तो ये तो आर्गन बन गया. नहीं नहीं नहीं, ये आर्गन नहीं बना है. क्यों आर्गन नहीं बना है, बिकॉज आर्गन में जो प्रोटॉन्स होते हैं वो अलग होते हैं, न्यूट्रॉन्स अलग होते हैं. और कोई भी एलिमेंट का जो केमिकल बिहेवियर है वो तो इलेक्ट्रॉन्स डिफाइन करते हैं, लेकिन उसका जो फिजिकल बिहेवियर है वो आर्गन जैसा नहीं होगा. अब वो क्लोरीन का आयन बन चुका है. ठीक है, अब देखो ये जो क्लोरीन का आयन है, एनायन इसको बोलते हैं, एनायन ऑफ क्लोरीन, Cl माइनस. माइनस क्यों होता है वो बताता हूं मैं. इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने हो चुके हैं, इलेक्ट्रॉन्स हो गए यहां पे 18. कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए इसमें, 18 इलेक्ट्रॉन्स. कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 18. प्रोटॉन्स कितने हैं, 17 प्रोटॉन्स है. मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन इज 1 लेस देन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. मतलब इलेक्ट्रॉन यहां पे ज्यादा है. अगर इलेक्ट्रॉन एक ज्यादा है, प्रोटॉन एक कम है, तो ओवरऑल इस पूरे एटम पे एक नेगेटिव चार्ज होना चाहिए. तो यहां पे वो नेगेटिव चार्ज दिखेगा. ये नेगेटिव चार्ज की तरह ये एटम चार्ज्ड एटम की तरह बिहेव करेगा. उसी चार्ज एटम को एनायन बोलते हैं, नेगेटिवली चार्ज्ड एटम को. राइट तो बेसिकली हमारे पास, अगर तुम इसका जूम आउट वर्जन देखोगे, रुको मैं तुम्हें दिखाता हूं जूम आउट करके. तो हमारे पास 2 आयन क्रिएट हुआ है. ठीक है, तुम्हारे स्क्रीन के लेफ्ट साइड पे अगर तुम देखोगे तो सोडियम एटम से सोडियम का आयन बना जो पॉजिटिव है, क्लोरीन के एटम से क्लोरीन का आयन बना जो नेगेटिव है. दोनों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नियरेस्ट नोबल गैस जैसा हो गया, दोनों केमिकली स्टेबल हो गए. सोडियम के आयन और क्लोरीन के आयन दोनों ने केमिकल स्टेबिलिटी अचीव कर ली. लेकिन 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 ये चार्ज भी एक्वायर कर लिया. मतलब ये केमिकली स्टेबल तो हो गए, लेकिन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल नहीं रहे जैसे पहले थे. पहले सोडियम का केस क्या था, जब वो एटम था 11 प्रोटॉन थे 11 इलेक्ट्रॉन थे, तो इलेक्ट्रॉनिकली न्यूट्रल था, ना पॉजिटिव था ना नेगेटिव था, न्यूट्रल था. अब उसके पास 11 प्रोटॉन्स और 10 इलेक्ट्रॉन्स है, तो इलेक्ट्रिकली पॉजिटिव हो गया. क्लोरीन का केस कैसा हो गया, तो क्लोरीन के पास पहले जब वो एटम था तो 17 प्रोटॉन्स और 17 इलेक्ट्रॉन्स थे, वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था. लेकिन अब 18 इलेक्ट्रॉन्स और 17 प्रोटॉन्स है, तो इलेक्ट्रिकली वो नेगेटिव है. राइट अब ये रीजन है कि बॉन्डिंग होती है. चलो गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन तो ठीक है, नियरेस्ट अचीविंग द नियरेस्ट नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी ठीक है, लेकिन बॉन्डिंग क्यों होती है. अब देखो, अगर एक सोडियम, देखो मैं यहां पे तुम्हें इसके नीचे ही लिख के बताता हूं. अगर एक सोडियम Na+, ठीक है, और Cl-,
चलो इससे पहले वाली स्टोरी भी मैं तुम्हें बता देता हूँ। सोडियम और क्लोराइड, सोडियम और क्लोरीन की स्टोरी समझनी है ना अपने को। सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन दिया, किसको दिया? क्लोरीन को, और वो क्या बन गया? Na+। क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया और वो क्या बन गया? Cl-। अब जब सोडियम इलेक्ट्रॉन दे रहा है और क्लोरीन उससे इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो दोनों दूर दूर तो रह के नहीं कर सकते, पास आना पड़ेगा। और जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन अपने सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है सोडियम से, वो चार्ज अक्वायर कर लेते हैं। और वो चार्जेस क्या है? इक्वल एंड ऑपोजिट, पॉजिटिव नेगेटिव। और ये पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज मतलब Na+ और Cl-, ये जो दो चार्ज्ड पार्टिकल, जो चार्ज्ड आयंस, कैटायंस और एनायंस बन गए सोडियम और क्लोरीन के रिस्पेक्टिवली, उनके बीच में एग्जिस्ट करता है एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मतलब द अट्रैक्शन बिटवीन चार्ज्ड पार्टिकल्स, ऑपोजिटली चार्ज पार्टिकल। तुम्हें पता होगा ना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा है तुमने 8th स्टैंडर्ड में। चार्ज पार्टिकल होते हैं ना, पॉजिटिव और नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो सोडियम और क्लोरीन वैसे ही एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और ये बना देंगे एक बॉन्ड। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। ये पूरी स्टोरी है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड की। ये मैं तुम्हें हर एक एटम के साथ, हर एक एलिमेंट के साथ नहीं बताऊंगा। ये ओवरऑल स्टोरी मैंने तुम्हें ड्रॉ करके पूरी एक बार बता दी। अब सारे एलिमेंट्स के साथ यही चीज होने वाली, यही चीज होने वाली। ठीक है? तो सोडियम का जो आयन है वो क्लोरीन के आयन के साथ बॉन्ड हो जाता है ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और इसी बॉन्ड को, ये जो नया कंपाउंड बना है इसी ये बॉन्ड की वजह से, इसको बोलते हैं सोडियम क्लोराइड। और सोडियम क्लोराइड के बीच का जो बॉन्ड है दैट इज इलेक्ट्रोवैलेंट, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, या फिर आयोनिक बॉन्ड, या फिर आयोनिक, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड और आयोनिक बॉन्ड, दो आयंस के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से बनने वाला बॉन्ड। ठीक है? उसको आयोनिक बॉन्ड या फिर इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। समझ में आ गया कैसे बनता है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड? ओके, देन आई थिंक इट इज टाइम, इट इज टाइम फॉर व्हाट? फॉर मी टू एंड द लेक्चर और फॉर अस टू गो अहेड? लेट्स चेक। आई डोंट नो, मुझे देखना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक अच्छी नोट पे फिनिश करना चाहूंगा। ये बड़ी स्टोरी मैंने तुम्हें बताई, और आयोनिक बॉन्ड के बारे में हम लोग और डिस्कशन करेंगे। तो आज एक गुड न्यूज ये है कि यह लेक्चर जल्दी खत्म हो जाएगा और होमवर्क नहीं रहेगा आज के लिए, लेकिन तुम्हें नोट्स लेनी पड़ेगी। यू हैव टू टेक नोट्स। ठीक है? तो ही तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। होमवर्क मिलेगा तुम्हें नेक्स्ट क्लास में। लेकिन जाने से पहले आई वुड लाइक टू क्लियर वन मोर पॉइंट। यहां पे कैसे लिखा है देखो, इनकी लैंग्वेज बहुत बढ़िया है। The cation and anion being oppositely charged attract each other and form a chemical bond. Since this chemical bond formation is due to electrostatic force of attraction between a cation and anion, it is called electrovalent और ionic bond. Exactly जो हमने पढ़ा। तो इसकी डेफिनेशन देख लो, और डेफिनेशन वर्ड टू वर्ड इसको लर्न भी कर लो। इलेक्ट्रोवैलेंट और आयोनिक कंपाउंड क्या होते हैं? The chemical compounds formed as a result of the transfer of electrons from one atom of an element to one atom of another element are called ionic or electrovalent compounds. ठीक है? इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या होती है? The number of electrons that an atom of an element loses or gains to form an electrovalent bond is called its electrovalency. Number of electrons that an atom of an element loses or gains to form an electrovalent bond is called its electrovalency. सोडियम की इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या है? 1। क्लोरीन की इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या है? 1। 1+ या 1- भी बोल सकते हो। ठीक है? तो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड बनता है, ठीक है, एक एटम से दूसरे एटम में, एक एलिमेंट when element of one atom loses its electron to element of another atom of another element, उल्टा उल्टा बोल रहा हूं मैं। ठीक है?
इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड और आयोनिक कंपाउंड इज फॉर्म। ठीक है, अब यहाँ पे ये लोगों ने स्ट्रक्चर ऑफ सम इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड को डिस्कस किया है, जो मैंने ऑलरेडी, इफ यू रिमेंबर, आई वुड लाइक टू शो यू कि लास्ट क्लास में मैंने ये करवाया था। डू यू रिमेंबर दिस? मैंने तुम्हें बताया था सोडियम के बारे में, कैसे सोडियम आयन में कन्वर्ट होता है एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करके, और कैसे क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके क्लोराइड आयन में कन्वर्ट होता है। सोडियम पॉजिटिव होता है, क्लोरीन नेगेटिव होता है, और ये दोनों साथ में इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, ये सारी चीज जो मैंने लास्ट क्लास में डिटेल में डिस्कस की थी तुम्हारे साथ, दे आर अगेन डिस्कसिंग इट, बट इस टाइम पे जब सिर्फ मैं इसका रिविजन ले लूंगा, तो सोडियम का जो एटम होता है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 281, लेकिन वो एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करके नियरेस्ट नोबल गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लेता है, विच इज 2,8। ठीक है, तो सोडियम कन्वर्ट हो जाता है सोडियम आयन। ठीक है, अब इसमें फर्क क्या है? देखो, सोडियम के एटम और सोडियम के कैटायन में बहुत फर्क है। सोडियम का एटम सिल्वरी वाइट होता है, पॉइजनस होता है, बहुत एक्टिव होता है, इनकम्प्लीट होता है उसका आउटर मोस्ट शेल, न्यूट्रल होता है इलेक्ट्रिकली, और कंबाइंड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। लेकिन सोडियम का कैटायन, इट इज कलरलेस इन अपीयरेंस, नॉन पॉइजनस, inactive, it is chemically non-reactive, its outermost shell is completely filled, it is positively charged, it is not electrically neutral like sodium atom, and it exists independently। तो ये सारे फर्क है सोडियम एटम और सोडियम कैटायन में। एक इलेक्ट्रॉन लूज करने से इतना फर्क आ जाता है, जस्ट इमेजिन, एक इलेक्ट्रॉन इतना डिफरेंस एक एटम में क्रिएट कर सकता है। क्लोरीन के साथ भी यही बात है। क्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था वो था 287, लेकिन वो अपने आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके नियरेस्ट नोबल गैस आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लेता है। ठीक है, सो जैसे ही वो आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लेता है, वो क्लोराइड आयन बन जाता है, उसके पास नेगेटिव चार्ज आ जाता है। क्या फर्क है क्लोरीन एटम और क्लोराइड एनायन में? देखो, क्लोरीन एटम येलोइश ग्रीन कलर का होता है, क्लोराइड एनायन कलरलेस होता है। क्लोरीन एटम पॉइजनस होता है, क्लोराइड एनायन नॉन पॉइजनस होता है। क्लोरीन एटम सफोकेटिंग होता है, क्लोराइड एनायन ओडरलेस होता है। क्लोरीन एटम बहुत एक्टिव है, रिएक्टिव है केमिकली, क्लोराइड एनायन इनएक्टिव है, क्योंकि उसका आउटरमोस्ट शेल फिल्ड है, एक्टिविटी उसी पे डिपेंड करती है। क्लोरीन एटम का आउटर इनकम्प्लीट आउटरमोस्ट शेल होता है, लेकिन क्लोराइड एनायन का कंप्लीट आउटरमोस्ट शेल होता है। क्लोरीन एटम न्यूट्रल होता है इलेक्ट्रिकली, लेकिन क्लोराइड आयन नेगेटिवली चार्ज्ड होता है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है वो। क्लोरीन एटम नॉन इंडिपेंडेंट है, मतलब इट एग्जिस्ट इन कंबाइंड फॉर्म, बट क्लोराइड एनायन इंडिपेंडेंट है, इट ऑलवेज एग्जिस्ट ऑन इट्स ओन इफ इट कैन, बट इट कैन नॉट, बिकॉज जब भी सोडियम एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को देता है, सोडियम पॉजिटिव चार्ज एक्वायर करता है, क्लोरीन नेगेटिव चार्ज एक्वायर करता है, और बिकॉज ये लेन देन के लिए उनको पास आना पड़ता है, और जैसे ही ये लेन देन पूरी हो जाती है, जैसे ही सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देता है, दोनों के पास इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज क्रिएट हो जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं कूलम फोर्सेस, जिसकी वजह से कूलम फोर्सेस या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट होता है, और दोनों साथ में चिपक जाते हैं, जिससे बनता है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बिटवीन सोडियम एंड क्लोरीन, जिसको हम जानते हैं सोडियम क्लोराइड के नाम से। कॉमन सॉल्ट, राइट, सोडियम क्लोराइड। मोस्टली सारे सॉल्ट एक केमिकल है, ठीक है, सारे सॉल्ट आयोनिक या इलेक्ट्रोवैलेंट नेचर के ही होते हैं। सारे सॉल्ट मेटल और नॉन मेटल के बीच में इलेक्ट्रॉन की गिव एंड टेक से ही बनते हैं, ये याद रखना। ठीक है, अब हम जो सीखने वाले हैं इस क्लास में, दैट इज इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, या फिर ल्यूविस सिंबल, या फिर ल्यूविस डॉट स्ट्रक्चर। ये एक साइंटिस्ट था, हेनरी ल्यूविस नाम था शायद उसका। ये केमिस्ट ने क्या किया कि ये जो मगजमारी करी हमने लास्ट क्लास में, और यहाँ पे जो तुम देख रहे हो ये कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम, के बड़े बड़े एटम के स्ट्रक्चर बनाने पड़ते हैं उसको पूरा इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या कोवैलेंट बॉन्ड को समझाने के लिए, इससे हमें छुटकारा मिल गया। कैसे? लुईस डॉट स्ट्रक्चर की हेल्प से। तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर क्या बोलता है कि भाई अगर तुम्हारे पास कोई भी एटम है
तो तुम उसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है वही बना दो, बस पूरा एटम ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। तो जैसे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का सिंबल H लिख लो और सिंबल के अराउंड उसके आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन है वो बना दो। तो हमें पता है हाइड्रोजन के पास तो एक ही शेल है और वो एक शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो हमने यहाँ पे एक डॉट बना दिया। तो हाइड्रोजन विथ वन डॉट इज द इलेक्ट्रॉन डॉट सिंबल और इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर और लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन। वैसे ही ऑक्सीजन का लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऐसे है, क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2,6, मतलब आउटर मोस्ट शेल में ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन्स है। तो ऑक्सीजन का सिंबल बनाओ और उसके अराउंड ऐसे 6 डॉट्स डाल दो। तो तुम देख सकते हो यहाँ पे हाइड्रोजन के लिए वो लोग ने क्रॉस बनाया है। तो यहाँ पे लुईस डॉट स्ट्रक्चर में जरूरी नहीं है कि तुम हमेशा डॉट यूज करो, तुम क्रॉस भी यूज कर सकते हो। डॉट्स एंड क्रॉसेस, dots and crosses can be used as the symbols of electron which are present in the outermost shell of any atom of any element, and then you can represent the whole process of chemical bonding, whether it is electrovalent bond or covalent bond, does not matter, with the help of Lewis dot structure। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर दिखाया है सोडियम क्लोराइड का, तो सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दिया। सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, और सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दिया। सोडियम Na+ बन गया, क्लोरीन Cl- बन गया और दोनों एक साथ एक बॉन्ड बना के रहने लगे। तो ये हो गया लुईस डॉट स्ट्रक्चर। अब ये सेम लुईस डॉट स्ट्रक्चर या इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर मैग्नीशियम क्लोराइड का मैं तुम्हें समझाऊंगा। जैसे मैंने तुम्हें बताया था, मैंने ऑलरेडी ये वीडियो पहले बनाया हुआ है जो टेक्निकल ग्लिच की वजह से बंद हो गया था, तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी ये सब किया हुआ है तुम्हारे सामने। मैं तुम्हें बता देता हूं मैंने क्या क्या किया है। मैग्नीशियम क्लोराइड, सबसे पहले मैंने कंपाउंड का नाम लिख लिया। अभी तुम प्लीज ये याद रख लो कि एग्जाम में यू आर गोइंग टू फेस सच क्वेश्चंस वेयर they will tell you, they will ask you to make or prepare the electron dots with the help of electron dot structure, the formation of magnesium chloride. Explain the formation of magnesium chloride with the help of electron dot structure. This is how they are going to ask you the question. Okay, so you don't get confused, you just follow the steps which I am showing you and it will become easy. ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, मैग्नीशियम क्लोराइड क्या लिखना है तुम्हें, मैग्नीशियम क्लोराइड नाम लिखना है। अच्छा, उसके बाजू में क्या लिखना है, यू हैव टू राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2। ठीक है, अच्छा ये केमिकल फॉर्मूला जो है मैग्नीशियम क्लोराइड का, उसमें कितने मैग्नीशियम के एटम है 1, कितने क्लोरीन के एटम है 2, ये लिख लेना है। ठीक है, फिर तुम्हें लिखना है मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर, उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। फिर तुम्हें ये साइड में क्लोरीन लिखना है, उसका एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो अब हमें समझ में आ गया कि मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे मैंने मैग्नीशियम का सिंबल लिखा और उसके आउटर मोस्ट शेल में ये 2 इलेक्ट्रॉन बना दिए, मतलब लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाया। और यहाँ पे तुम देख पा रहे हो मैंने क्लोरीन के 2 एटम बनाए हैं जिसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन से, जो मैंने क्रॉसेस से बताए 7 क्रॉस बना दिए। अच्छा, मैग्नीशियम से एक इलेक्ट्रॉन ऐसे एरो से मैंने दिखाया है कि क्लोरीन में जा रहा है, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे क्लोरीन में जा रहा है। कितने क्लोरीन के एटम है 2, जो मुझे पहले ही पता चल गया था, इसलिए मैंने 2 क्लोरीन बना दिए यहाँ पे और एक मैग्नीशियम। तो एक मैग्नीशियम अपने आउटर मोस्ट शेल के 2 एटम 2 अलग अलग क्लोरीन एटम्स को डोनेट करता है एक एक करके। ठीक है, एंड व्हाट हैपेंस इज दिस मैग्नीशियम, बिकॉज इट्स डोनेटिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स, इट एक्वायर्स अ 2+ पॉजिटिव चार्ज। 2+ मतलब उसमें जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है वो हो गए 12, जो 12 ही थे पहले से 12 ही रहेंगे, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अब कितने हो गए 10, इसलिए उसका जो नेट पॉजिटिव चार्ज जो अक्वायर करेगा वो होगा 2+, Mg2+। अच्छा, क्लोरीन क्या करता है, क्लोरीन इज बेसिकली एक्सेप्टिंग 2 इलेक्ट्रॉन, बट क्लोरीन अकेला 2 इलेक्ट्रॉन नहीं ले रहा है, दोनों क्लोरीन एक एक इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं। तो इसलिए मैंने यहां पे लिखा है 2Cl एक्सेप्ट्स 2 इलेक्ट्रॉन टू बिकम्स 2Cl1-, मतलब दोनों क्लोरीन 1-1- ऐसा नेगेटिव चार्ज अक्वायर कर लेते हैं आफ्टर एक्सेप्टिंग 2 इलेक्ट्रॉन। सो दिस इज हाउ यू शो द फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। ये सब लिखना जरूरी है। अच्छा, अभी तक खत्म नहीं हुआ है, ये देखो। तो इसके बाद मैंने बताया है कि एक मैग्नीशियम जो सेंटर में है
वो 2+ चार्ज रखता है, एक क्लोरीन 1-, दूसरा क्लोरीन 1-, और ये तीनों के बीच में देर इज intermolecular forces of attraction which makes the compound MgCl2 magnesium chloride an ionic or electrovalent compound, right? So this is basically the whole formation of magnesium chloride discussed with you with the help of steps, and this is how you should explain in your answer when they ask you to explain the formation of magnesium chloride with the help of Lewis dot structure. This is what all you have to write. ठीक है, अब यहां पे तुम अगर देखोगे तुम्हारी टेक्स्ट बुक में, तो इसको वो लोग ने पैराग्राफ वाइज एक एक चीज लिख के समझाया है, जो बहुत सही है। फाइनली वो वही लिख रहे हैं जो मैंने लिखा है, लेकिन ये लिख के क्यों समझाया है? बिकॉज फॉर यू टू अंडरस्टैंड when you will be asked in exam, you don't need to write everything in paragraph form. लुइस डॉट स्ट्रक्चर का हेल्प ले सकते हो, और ये जो इक्वेशंस यहाँ पे लिखे हैं, जो हमने भी लिखे हैं, उसका भी हेल्प ले सकते हो, ठीक है? और तुम्हारा आंसर को तुम इंफॉर्मेटिव बनाने की कोशिश कर सकते हो, ठीक है? और एक कंपाउंड है यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड, ये भी मैंने बताया है, मैं तुम्हें बता देता हूं, मैंने ऑलरेडी ड्रॉ करके रखा है। चलो कैल्शियम ऑक्साइड देख लेते हैं। तो कैल्शियम ऑक्साइड कैसे काम करता है? कैल्शियम ऑक्साइड, पहले तो उसका फॉर्मूला क्या है? CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है? 1 एटम ईच ऑफ कैल्शियम एंड ऑक्सीजन। कैल्शियम ऑक्साइड किससे बना है? 1 एटम ईच ऑफ कैल्शियम एंड ऑक्सीजन। तो कैल्शियम एटॉमिक नंबर क्या है? 20। प्रोटॉन्स कितने हैं? 20। इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 20। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 2882। ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर क्या है? 8। प्रोटॉन्स कितने हैं? 8। इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 8। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 2,6। चलो ड्रॉ कर लेते हैं। तो मैंने कैल्शियम ड्रॉ किया, आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, 2 डॉट बना दिए। ऑक्सीजन ड्रॉ किया, आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 क्रॉसेस बना दिए। तो कैल्शियम को अपने आउटर मोस्ट शेल से 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करके आर्गन जैसा, आर्गन राइट, आर्गन जैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अचीव करना, और ऑक्सीजन को अपने आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके नियॉन जैसा आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अचीव करना। इसके लिए कैल्शियम अपने 2 इलेक्ट्रॉन एक ऑक्सीजन को डोनेट कर देगा, जो मैंने यहां पे रेड एरो से दिखाया है। इसको मैंने विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन भी एक्सप्लेन किया है। भाई कैल्शियम में क्या होता है? 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट हो जाते हैं उसमें से, और वो Ca2+ बन जाता है। ऑक्सीजन के साथ क्या होता है? उसमें 2 इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाते हैं, और वो क्या बन जाता है? O2-। Ca2+ और O2- ये दोनों साथ में रहने लगते हैं, क्योंकि उनके पास इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज अब जनरेट हो गया है। तो उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, उसको क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसकी वजह से बनता है आयोनिक या फिर इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड कैल्शियम ऑक्साइड। सो दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। ऐसे तुम कितने भी, कोई भी, अगर तुम्हें नॉलेज है एटॉमिक नंबर का, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का, अलग अलग एटम्स का एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड के मॉलिक्यूल में, तो तुम किसी भी मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन लुईस डॉट स्ट्रक्चर से एक्सप्लेन कर सकते हो। In the first part of the chapter, we learned about electrovalent or ionic bond, which takes place between two atoms or two ions, one each from a metal and a non-metal, by donation and acceptance of electrons. And it is due to the strong electrostatic forces between the oppositely charged ions. Here, the story is little different. Let's study the definition first, and then we'll go to the details of covalent bond. So the chemical bond that is formed between two combining atoms by mutual sharing of one or more pairs of electrons is called a covalent or a molecular bond, and the compound formed due to this bond is called a covalent compound. A chemical bond that is formed between two combining atoms by mutual sharing. By mutual sharing, तो यहाँ पे एक चीज तो क्लियर है, गिव एंड टेक नहीं हो रहा है, शेयरिंग हो रही है, और इसमें बहुत फर्क है।
by mutual sharing of one or more pairs of electrons. It is known as covalent or molecular bond, and the compound formed is known as covalent compound. The molecule formed due to the sharing of electrons is called covalent molecule. Let's understand more about covalent compounds or covalent molecules or covalent bonds. Okay, so the first thing you should understand is the difference between covalent and electrovalent compounds or covalent and electrovalent bonds. Electrovalent bond is formed by mutual exchange of electrons. Not, you can't say mutual exchange of electrons, but you can say that, yeah, the correct word is transfer of electrons. Okay, so if you want me to give you a difference between these two, let me write here ionic bond versus covalent bond. Okay, so this bond is formed by transfer of electrons, ionic bond, and covalent bond is formed by mutual sharing of electrons. Okay, in ionic bond we understood that any element if donates an electron, it acquires a positive charge, and this electron is donated to any other element which accepts this particular electron and acquires negative charge, and this element who donated the electron and this element who accepted the electron, they exist together by making an ionic bond. So that was the whole story of transfer of electron and how transfer of electron takes place for completing the outermost shell, and how ionic bond comes into existence. But for transfer of electron, one of the combining atoms should have excess of electrons in the outermost shell. Excess of electrons matlab 1, 2 or 3 electrons. Basically it should be a metal, and the other atom should have a deficit of electrons, that means it should have 5, 6 or 7 electrons in the outermost shell. That means it should be a non-metal. ये पूरी स्टोरी थी. किसकी स्टोरी थी? ये आयोनिक बॉन्ड. आयोनिक बॉन्ड कभी बनता है? जब वन ऑफ द कंबाइनिंग एटम इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर सकता है और दूसरा कंबाइनिंग एटम इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है. एक मेटल होता है, दूसरा नॉन मेटल होता है. एक के आउटर मोस्ट शेल में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दूसरे के आउटर मोस्ट शेल में 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. Only then, by transfer of electron, ionic bond can come into existence. But in covalent bond, since there is no transfer of electron, then what is there? There is sharing of electrons. क्या है यहाँ पे? Sharing of electrons. क्योंकि यहाँ पे mutual sharing of electron है, तो शेयरिंग किसके बीच में होती है ये भी समझना जरूरी है. इसका कॉन्सेप्ट समझो. ये थोड़ा सा मैं तुम्हें रियल लाइफ एग्जांपल दे रहा हूं, तो शायद शेयरिंग का कॉन्सेप्ट तुम्हें अच्छे से समझ में आएगा. सो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द फिनोमेना ऑफ शेयरिंग. ठीक है. सो कुछ पॉइंट्स है शेयरिंग के लिए. शेयरिंग हमेशा उन दो लोगों के बीच में या दो से ज्यादा लोगों के बीच में होती है जिन सबको किसी एक चीज की जरूरत होती है. सो शेयरिंग
happens only amongst needy. शेयरिंग हैपन्स ओनली अमॉन्ग्स्ट नीडी. नीडी मतलब सबको जरूरत है तो सब मिल बांट के उसको यूज करेंगे, शेयर करेंगे किसी एक चीज को. ठीक है. अब मुझे बताओ कि यहां पे जो मैंने तुम्हें एग्जांपल दिया मेटल का, जिसके पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, क्या वो शेयरिंग करने में इंटरेस्टेड रहेगा? अरे मेटल जिसके पास 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में, वो शेयरिंग क्यों करेगा? वो तो बोलेगा नॉन मेटल को कि यार कोई मेरे 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स को ले लो, मेरा आउटर मोस्ट शेल खत्म हो जाएगा और मुझे नोबल गैस का इलेक्ट्रॉनिक, नियरेस्ट नोबल गैस का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन मेरा अचीव हो जाएगा. तो मेटल को शेयरिंग की जरूरत नहीं है. इसके लिए शेयरिंग क्या होता है ये भी समझो तुम. बहुत लोग अभी भी कंफ्यूज रहेंगे कि शेयरिंग एक्चुअली सही है ना, शेयरिंग तो कर सकता है, मेटल शेयरिंग ही तो कर रहा है. मेटल शेयरिंग नहीं कर रहा है, वो डोनेट कर रहा है. डोनेट करना और शेयर करना बहुत अलग अलग चीजें हैं. शेयरिंग में क्या होता है पता है? शेयरिंग में ऑल कंट्रीब्यूटिंग पार्टनर्स या फिर जो भी कंटेस्टेंट्स या जो बोलेंगे हम इसको एलिमेंट्स को, ऑल कंट्रीब्यूटिंग पार्टनर्स आर नीडी. नीडी का मतलब क्या है? सबको जरूरत है इलेक्ट्रॉन्स की. दे ऑल रिक्वायर इलेक्ट्रॉन्स. हेंस मेटल्स आर नेवर नीडी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. मेटल्स कभी इलेक्ट्रॉन्स के नीडी नहीं होते. मेटल्स को कभी इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत नहीं होती, वो तो डोनेट करना चाहते हैं. सो मेटल्स tends to lose or donate electrons from their outermost shell. मेटल क्या करना चाहते हैं? They want to lose or donate electrons from their outermost shell. They don't want to share it with somebody. शेयरिंग का मतलब क्या होता है? शेयरिंग का मतलब यह होता है कि यार शेयरिंग का मैं डेफिनेशन बता रहा हूं तुम्हें, सोचो. या बट इट इज नेसेसरी. लेट्स गूगल द वर्ड शेयरिंग meaning. That is so dumb, but still, have a portion of something with another. No, have a portion to use, occupy or to enjoy jointly with another. Yes. तुम्हें दिख रहा है यहाँ पे ये डेफिनेशन? टू यूज, टू ऑक्यूपाई और टू एंजॉय समथिंग जॉइंटली विथ अदर्स. यही कर रहे हैं ना इलेक्ट्रॉन, सॉरी एटम्स. शेयरिंग इज टू यूज समथिंग मतलब इलेक्ट्रॉन्स बेसिकली. ठीक है. जॉइंटली मीन्स टुगेदर विथ अदर्स. अगर शेयरिंग का मतलब ये होता है कि अगर शेयरिंग हो रही है दो लोगों के बीच में, तो शेयरिंग का मतलब क्या है? शेयरिंग मतलब कोई एक चीज दोनों यूज कर रहे हैं. ठीक है. तो मेटल्स क्यों शेयर नहीं कर सकता? क्योंकि मेटल्स को उसकी जरूरत ही नहीं है इलेक्ट्रॉन्स की. तो वो क्यों जॉइंटली शेयर करेगा? वो उसको बोलेगा ना तू रख भाई. चलो तुम्हें मैं और एक एग्जांपल देता हूं. तुम क्लास में पढ़ रहे हो, ठीक है, और तुमने देखा कि तुम्हारे दोस्त को एक पेन चाहिए. ठीक है. अब तुम्हारे पास 2 पेन है, तो तुम क्या करोगे? तुम उससे पेन शेयर करोगे. जनरली हम ऐसे ही बोलते हैं, बात करते टाइम वी ऑलवेज टॉक लाइक दैट कि हाँ मैंने उसके साथ पेन शेयर किया. तुमने शेयर नहीं किया, तुमने उसको डोनेट कर दिया, तुमने उसको लेंड किया. लेंड करना, उधार देना,
डोनेट करना, दान देना, और शेयर करना, उसमें बहुत फर्क होता है। शेयर करना मतलब मिल बांट के यूज करना। अच्छा, तुम तुम्हारे फ्रेंड, तुम्हारे पास दो पेन है, तुम्हारे दोस्त को पेन चाहिए, तुम बोलोगे रख अभी, मेरे को मत दे, तू पहले अपना काम कर ले, बाद में मुझे दे देना। ऐसे ही बोलते हो ना तुम? या तुम बोलते हो कि इधर बीच में रख, मैं भी यूज करूंगा, तू भी यूज करेगा। तो वो बोलेगा तेरे पास है खुद की पेन, फिर तू क्यों यूज करेगा इसको? तू मुझे दे दे ना, मैं तेरे को देता हूं बाद में। समझ में आ रही है बात? शेयरिंग का मतलब क्या होता है? शेयरिंग मतलब दोनों लोग एक साथ वो चीज को यूज कर रहे हैं। तो मेटल्स तो शेयर करेंगे ही नहीं ना कभी इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि मेटल्स को तो जरूरत ही नहीं इलेक्ट्रॉन्स की, वो तो डोनेट करना चाहते हैं। ठीक है। अच्छा, अभी समझो कि तुम और तुम्हारा दोस्त बैठे हो क्लास में। अब दोनों के पास पेन एक ही है। तुम्हारे पास एक ही पेन है, उसके पास एक भी नहीं है, मतलब दोनों के पास एक ही पेन है। अब वो बोलता है यार मेरे साथ शेयर करना प्लीज। तो तुम क्या करते हो? अच्छा, टेक्स्ट बुक, ये तो होता ही है। तुम टेक्स्ट बुक नहीं लेके गए, और लेक्चर में टीचर देख रहा है तुम्हारे सामने कि अब बेवकूफ लड़का है, टेक्स्ट बुक भी नहीं लेके आया, क्या बेवकूफ स्टूडेंट है। तो तुम क्या बोलते हो अपने दोस्त को? यार तेरी टेक्स्ट बुक मेरे साथ शेयर करना। तो तुम दोनों क्या करते हो? वो टेक्स्ट बुक को मिडल में रखते हो, बेंच के मिडल में रखते हो, और उसको शेयर करते हो ना। एक ही टेक्स्ट बुक है, दोनों यूज कर रहे हैं, दोनों को जरूरत है। तो हमेशा याद रखो, शेयरिंग तभी होती है जब 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 दोनों या दो से ज्यादा लोग नीडी होते हैं। शेयरिंग हैपेंस ओनली अमॉन्ग्स नीडी। ठीक है। ऑल कंट्रीब्यूटिंग पार्टनर्स आर नीडी। अभी एक कोई कंट्रीब्यूटिंग नहीं रहेगा, वो भी नीडी रहेगा। ठीक है। अच्छा, मेटल्स आर नेवर नीडी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। metals they need to donate or lose electrons from their outermost shell, so metals can never do sharing। ये पॉइंट मैं यहां पे लिख देता हूं, metals can never share electrons। ठीक है। therefore metals can never form covalent bond, क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड तो शेयरिंग से बनता है। मेटल्स कभी भी कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बना सकते। metals can never share electrons, and hence metal can never form covalent bond। हेंस ये नोट्स ले लेना सारी, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। हेंस मेटल्स कैन नेवर फॉर्म कोवैलेंट बॉन्ड्स। ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट, मेटल्स को हमने हटा ही दिया इस पिक्चर से, शेयरिंग वाले पिक्चर से, क्योंकि हम शेयरिंग का मतलब समझ गए। अच्छा, अब दूसरी चीज, शेयरिंग कैसे होती है, किसके बीच में होती है? तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स always takes place, always takes place between or among two नॉन मेटल्स। शेयरिंग किसके बीच में होती है हमेशा? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑलवेज टेक्स प्लेस बिटवीन टू नॉन मेटल्स। शेयरिंग हमेशा दो नॉन मेटल्स में ही होती है। क्यों? सिंस टू और मोर, टू और मोर नॉन मेटल्स। क्यों? सिंस दे आर always in need of electrons, since they are always in need of electrons। so दो या दो से ज्यादा नॉन मेटल्स हमेशा शेयरिंग में पार्ट लेंगे, एंड दैट्स वाई ओनली एलिमेंट्स विच कैन फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड्स आर नॉन मेटल्स। ठीक है, इसलिए कोवेलेंट बॉन्ड हमेशा नॉन मेटल्स के बीच में ही बनता है। ठीक है। अच्छा, कंडीशंस क्या है शेयर करने के लिए? फॉर शेयरिंग electrons, two or more non-metals must be in close
vicinity. For sharing electrons, two or more nonmetals must be in close vicinity. What do you mean by close vicinity? Close vicinity means they must be near to each other. ठीक है, near to each other. अब तुम सोचो, इसका एक मैं तुम्हें रियल लाइफ एग्जांपल देता हूं. तुम्हारे फ्रेंड्स के साथ एक टेक्स्ट बुक शेयर करना चाहते हो. तुम्हारा फ्रेंड बैठा है फर्स्ट बेंच पे और तुम बैठे हो लास्ट बेंच पे. कर सकते हो शेयरिंग? कर सकते हो शेयरिंग? बिल्कुल नहीं कर सकते. शेयरिंग तभी होती है जब दोनों नीडी होते हैं और दोनों एक दूसरे के पास होते हैं, और दोनों को शेयरिंग कंटिन्यू करने के लिए एक दूसरे के पास रहना पड़ता है. सो शेयरिंग करने के लिए जब दो नॉन मेटल क्लोज विसिनिटी में आ जाते हैं तभी वो बॉन्ड बना लेते हैं. ठीक है, हेंस covalent bonds are formed. Hence, covalent bonds are formed. ठीक है, तो दो नॉन मेटालिक एटम्स जिनको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, जिनके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, वो ही इलेक्ट्रॉन्स शेयर करते हैं. और उनको शेयर करने के लिए पास में रहना जरूरी है, और ये पास में जब रहते हैं और शेयर करते हैं तो एक बॉन्ड बना लेते हैं, और उनके बीच में बना हुए बॉन्ड को हम लोग क्या बोलते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड्स. अब पूरा क्लियर हो गया पिक्चर, शेयरिंग कब होती है, किसके बीच में होती है. ठीक है, तो कोवेलेंट बॉन्ड म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से बनता है, और ये बनता है बिटवीन टू और मोर नॉन मेटल्स. ठीक है, अच्छा अभी कोवेलेंट बॉन्ड किसके बीच में बनता है, कैसे बनता है, ये सब हम समझ गए. किसके बीच में नहीं बनता है, कौन कोवेलेंट बॉन्ड में हिस्सा नहीं ले सकता, ये भी हम समझ गए. कोवेलेंट बॉन्ड की तीन टाइप होती है. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड. टाइप नंबर 1, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड. सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है? सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड में 1 electron each is shared from both combining atoms. 1 electron each is shared from both combining atoms. ठीक है, 1 electron each मतलब that is 1 pair of electron. 1 pair of electron is shared in all. इन ऑल कितने इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं? 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं इन ऑल. ठीक है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड में याद रखना 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं इन ऑल. ठीक है, दूसरे टाइप का बॉन्ड होता है डबल कोवेलेंट बॉन्ड. क्या होता है डबल कोवेलेंट बॉन्ड में? 2 इलेक्ट्रॉन्स ईच इज शेयर्ड. कितने इलेक्ट्रॉन ईच? 2 इलेक्ट्रॉन्स ईच. ठीक है, दोनों नॉन मेटालिक एटम दो इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं. ठीक है, दैट इज 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ऑल इज शेयर्ड. 2 पेयर शेयर होती है इलेक्ट्रॉन्स की, 2 पेयर शेयर होती है. और लास्ट वाला है ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड. ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है? ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड में 3 इलेक्ट्रॉन्स ईच आर शेयर्ड. एक्चुअली यहां भी आ रहेगा 3 इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम ईच एटम आर शेयर्ड. ठीक है, दैट इज 3 pairs of electron in all in total are shared. तो मतलब कोवेलेंट बॉन्ड की 3 टाइप होती है. सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड,
डबल कोवेलेंट बॉन्ड और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। इसके हम एग्जाम्पल के साथ इनको समझते हैं, ठीक है। सबसे पहला एग्जाम्पल सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड का। मैं इसलिए टेक्स्ट बुक में नहीं देख रहा हूं बिकॉज ये सारी चीजें अगर मैं पढ़ूंगा इट कुड बी वेरी वेरी टीडियस एज वेल एज वेरी वेरी कंफ्यूजिंग एट टाइम्स, एंड यू विल फील बोर्ड। टेक्स्ट बुक तुम भी पढ़ सकते हो, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है सारे कॉन्सेप्ट मोस्टली, बट अगर तुम मेरी बात पहले सुन लो, समझ लो, और फिर टेक्स्ट बुक में एक बार देख लो कि कैसे लिखा है वो लोग ने, व्हाट इज द लैंग्वेज दे हैव यूज्ड एंड हाउ दे हैव एक्सप्लेन्ड, तुम्हें दो पर्सपेक्टिव मिल जाएंगे। और स्कूल के टीचर जो समझा रहे हैं वो तीसरा पर्सपेक्टिव, वो अलग है, ठीक है। तो इट इज बेटर दैट यू लिसन टू माई एक्सप्लेनेशन फर्स्ट एंड देन यू कैन, इफ यू विश यू कैन रीड द टेक्स्ट बुक एंड कंपेयर एंड वेरीफाई कि कैसे, मतलब तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है कि नहीं हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले एग्जाम्पल है सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड का। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड का जो सिंबल है वो है सिंगल लाइन। क्या सिंबल है उसका? सिंगल लाइन, ठीक है। अच्छा, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड किसके बीच में, कौन से दो मेटल्स के बीच में बनता है? कौन से दो मेटल नहीं, कौन से दो एटम्स के बीच में बनता है, ठीक है। इट इज फॉर्म्ड बिटवीन atoms of elements which require one electron each in their outermost shell to achieve stable electronic configuration। सिंगल बॉन्ड, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड किन एटम्स के बीच में बनता है? एटम्स ऑफ दोज एलिमेंट्स, दोज नॉन मेटालिक एलिमेंट्स, नॉन मेटालिक ये लिखना भी जरूरी है। It is formed between atoms of non-metallic elements which require one electron each in their outermost shell to achieve stable electronic configuration। एक एग्जांपल मैं लेता हूं, H2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल कोवेलेंट बॉन्ड से बनता है। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल नाउ तुम लोगों को याद होगा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। मेरी सारा अभी का आगे का एक्सप्लेनेशन इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के टर्म्स में रहेगा, सो डोंट गेट कंफ्यूज। देखो, हाइड्रोजन का ये सिंबल है, एटम है, इसके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। दूसरा हाइड्रोजन यहाँ पे है, इसके आउटर मोस्ट शेल में भी एक इलेक्ट्रॉन है। तो ये हाइड्रोजन इसको बोलता है कि यार क्या करूँ यार, लाइफ बहुत बेकार है यार, लॉकडाउन में एकदम हालत खराब हो गई है। तो बोला क्या हो गया तेरे को? बोलता है यार एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है मेरे को। बोलता है क्या बात कर रहा है, मेरे को भी एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। अच्छा, एक इलेक्ट्रॉन चाहिए देखो, मेरे को भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। तेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन है? तो ये बोलता है मेरे पास वन है। तेरे पास कितने? मेरे पास भी वन है। अच्छा, तो ये लोग आइडिया करते हैं और बोलते हैं क्यों ना हम लोग साथ में आके यार इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेते हैं अपने आउटर मोस्ट शेल में। तो ये दोनों साथ में आ जाते हैं, पास में आ जाते हैं, और इलेक्ट्रॉन को शेयर करके आउटर मोस्ट शेल में वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वन इलेक्ट्रॉन ईच शेयर करके एक बॉन्ड बना लेते हैं, ठीक है। अब ये हाइड्रोजन के पास आउटर मोस्ट शेल में दो इलेक्ट्रॉन है, इस हाइड्रोजन के पास भी आउटर मोस्ट शेल में दो इलेक्ट्रॉन है, दोनों का आउटर मोस्ट शेल कंप्लीटली फिल्ड, ठीक है, और बन गया हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल। इसी को हम लोग बोलते हैं हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, जो एक सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड का क्लासिक एग्जांपल है। इसका सिंबॉलिक जो रिप्रेजेंटेशन है दैट इज H सिंगल बॉन्ड H, मतलब दोनों हाइड्रोजन के बीच में वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर हो रही है, या वन इलेक्ट्रॉन ईच दोनों हाइड्रोजन एटम एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे हैं।
समझा हाइड्रोजन कैसे बनता है मॉलिक्यूल? इसका मैं जो एटॉमिक स्ट्रक्चर के वाला डायग्राम है वो तुम्हें मैं दिखाऊंगा टेक्स्ट बुक में, तुम्हें खुद मिल जाएगा वो। ठीक है, और एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल है क्लोरीन मॉलिक्यूल का। अब क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7। 1 2 3 4 5 6 7। दूसरा एक क्लोरीन है, 1 2 3 4 5 6 7। तुम पूछोगे सर क्रॉस क्यों बना है? भाई मेरी मर्जी है, मैंने क्रॉस बना दिया। डॉट बनाओ ना, तुम्हारी मर्जी है, डॉट बनाओ, कुछ भी बना सकते हो। ठीक है, तो यही कन्वर्सेशन दोनों के बीच में होता है। अरे तेरे को कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? मेरे को तो 1 चाहिए। ये बोलता है मेरे को भी 1 चाहिए। तो क्यों ना हम लोग साथ में आके 1 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेते हैं। दोनों को अगर चाहिए और दोनों के पास कुछ इलेक्ट्रॉन्स है आउटर मोस्ट शेल में, तो शेयरिंग क्यों नहीं हो सकती? हो सकती है ना शेयरिंग। ये देखो हो गई शेयरिंग। यहां जैसे शेयरिंग हुई थी ऐसे यहां भी शेयरिंग हो गई। अब मुझे बताओ ये क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3 4 5 6 7 8। ये क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 1 2 3 4 5 6 7 8। दोनों के आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। दोनों क्लोरीन स्टेबल हो गए, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अचीव कर लिया। Cl सिंगल बॉन्ड Cl। तो ये क्या है? क्लोरीन का मॉलिक्यूल Cl2, क्लोरीन मॉलिक्यूल। अच्छा, और एक एग्जांपल देता हूं तुमको, HCl। क्योंकि यहां पे हमने मॉलिक्यूल का एग्जांपल दिया था जिसमें एटम सेम काइंड के हैं, यहाँ पे अलग अलग काइंड के एटम्स। इनमें भी हो सकती है बॉन्डिंग, कोवेलेंट बॉन्डिंग, शेयरिंग हो सकती है इनमें, क्यों नहीं हो सकती? तो हाइड्रोजन जिसके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन जिसके आउटर मोस्ट शेल में 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये दोनों को बेसिकली एक एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। देखो जिसको भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए ना आउटर मोस्ट शेल में कंप्लीट स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अचीव करने के लिए, दे विल डेफिनेटली गो फॉर शेयरिंग, शेयरिंग ऑफ 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो ये लोग पास में आ जाते हैं, इनमें शेयरिंग हो जाती है। सो दे शेयर 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑल और 1 इलेक्ट्रॉन ईच फ्रॉम देयर साइड। एंड हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो गया और क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो हाइड्रोजन भी स्टेबल, क्लोरीन भी स्टेबल, और कौन सा मॉलिक्यूल बना हमारे पास? HCl या फिर HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ऐसे ही तो बनता है। समझ में आया? सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड इजी है ना? ठीक है, तो ये था एग्जांपल सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड का। वैसे ही मैं तुम्हें अभी एग्जांपल दूंगा डबल कोवेलेंट बॉन्ड। डबल कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है? डबल कोवेलेंट बॉन्ड, उसका सिंबल है पहले तो 2 लाइन, डबल लाइन। इट इज फॉर्म्ड बाय, it is formed between atoms of two non-metallic elements uh, by mutual sharing of 2 pairs of electrons। ठीक है, जब एटम्स ऑफ 2 नॉन मेटालिक एलिमेंट्स म्यूचुअली 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं तो हमें क्या मिलता है? डबल कोवेलेंट बॉन्ड मिलता है। तो डबल कोवेलेंट बॉन्ड के लिए रिक्वायरमेंट क्या है? ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। जैसे सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड में रिक्वायरमेंट थी कि आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन की कमी अगर है तो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड ही बनेगा। डबल कोवेलेंट बॉन्ड में ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ये मैं तुम्हें बताता हूं क्यों ऐसा नहीं। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं, चलो एग्जाम्पल से समझेगा। पहला एग्जाम्पल है O2, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। सो ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4
5 6 और एक ऑक्सीजन यहाँ पे 1 2 3 4 5 6। सो ये ऑक्सीजन बोलता है यार मेरे को आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, 2 की कमी है। ये बोलता है क्या बात कर रहा है, मेरे पास भी 2 की कमी है, क्यों ना हम लोग शेयर कर ले, साथ में आ जाते हैं, शेयर कर लेते हैं, तेरा भी काम हो जाएगा मेरा भी काम हो जाएगा। बोला ठीक है यार, अच्छी बात है, अच्छा आइडिया है। सो दोनों साथ में आके 2 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ईच अपने आउटरमोस्ट शेल से शेयर कर लेते हैं। अब इस ऑक्सीजन के पास 1 2 3 4 5 6 7 8 और इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं। सो ऐसे ही बनता है ऑक्सीजन ऑक्सीजन डबल कोवेलेंट बॉन्ड, दैट इज मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। I'm just curious about I think H2O. H2O is an example of a single bond. Yeah. So I think I'll give you that example first. I'll give you example of H2O first before going ahead. Okay, so this is one more example which I would like to discuss about single covalent bond. I thought it's a double covalent bond, but then I realized that no. Oxygen has how many electrons? 1 2 3 4 5 and 6 electrons in the outermost shell. Hydrogen has 1 electron. One more hydrogen has 1 more electron. तो ये ऑक्सीजन बेचारा एक दिन बहुत परेशान था, यार मेरे को आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए टू कंप्लीट द आउटर मोस्ट शेल, अब मैं क्या करूं। सो एक हाइड्रोजन आता है उसके पास, बोलता है यार मेरे को तो एक इलेक्ट्रॉन है मेरे आउटर मोस्ट शेल में, सो आई विल शेयर 1 इलेक्ट्रॉन विथ यू ना। तो बोलता है वो ठीक है, तू कर ले मेरे साथ शेयरिंग, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग बॉन्ड बना देते हैं सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, लेकिन मेरे पास तो यार 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए ना, अब तूने शेयर किया तो 7 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, मेरे को तो 8 चाहिए। तो ये हाइड्रोजन बोलता है कोई टेंशन मत ले, मेरा एक मेरा भाई है सेम मेरे जैसा दिखता है, वो भी आ जाएगा, मैं फोन कर देता हूँ उसको, वो भी तेरे साथ शेयरिंग कर लेगा एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है। सो ये स्टोरीज आई होप यू लाइक दीज रेफरेंसेस, अदरवाइज यू नो इट बिकम्स वेरी बोरिंग टू, इसलिए मैं थोड़ा ह्यूमन काइंड ऑफ एग्जाम्पल क्रिएट कर रहा हूं तुम्हारे लिए। तो ऐसे बनता है H2O बॉन्ड। ठीक है, क्या हुआ H2O में? हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, दिस इज नथिंग बट H2O। दो सिंगल बॉन्ड है, इसको डबल बॉन्ड नहीं बोल सकते, दो सिंगल बॉन्ड है। एक कोवेलेंट बॉन्ड में दो सिंगल बॉन्ड हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते, बिल्कुल हो सकते हैं। और वाटर उसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है, वाटर उसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है। ठीक है। तो यस, अब आई थिंक ये डेफिनेशन भी क्लियर हो चुकी है कि डबल बॉन्ड तभी बनता है कि जब आउटर मोस्ट शेल में दो इलेक्ट्रॉन की कमी है। ठीक है। सो इट इज फॉर्म्ड बिटवीन एटम्स ऑफ टू नॉन मेटालिक एलिमेंट्स बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ टू पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पे एक चीज में इंक्लूड करना चाहिए मुझे, इन विच देर इज अ डेफिसिट ऑफ टू इलेक्ट्रॉन्स, और इन विच there is you can say requirement of two electrons in the outermost shell, उनके बीच में डबल कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। ठीक है। और एक एग्जांपल ले ले डबल कोवेलेंट बॉन्ड का। चलो किसका एग्जांपल लेना है यार, मुझे देखना पड़ेगा टेक्स्ट बुक में। डबल कोवेलेंट बॉन्ड का नहीं है एग्जांपल, नहीं है एग्जांपल, ट्रिपल का है, डबल का नहीं है, नहीं है, नहीं है एग्जाम्पल, एक ही है जो ऑक्सीजन का मैंने तुम्हें बताया। चलो ट्रिपल का देख लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ट्रिपल ट्रिपल बॉन्ड का एग्जाम्पल देखते हैं एंड देन विल गो टू आवर चैप्टर। ठीक है। सो दिस वाज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑक्सीजन। ऐसा नहीं है कि एग्जाम्पल नहीं है तो और कोई डबल बॉन्ड होगा ही नहीं, एक ही होगा ऑक्सीजन का, और बहुत सारे हैं, और बहुत सारे हैं। ठीक है।
बट अब अभी हमारे लिए ये एक एग्जाम्पल मोर देन इनफ है. लेट्स टेक द नेक्स्ट टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, दैट इज ट्रिपल कोवेलेंट bond or the three lines, right? Triple covalent bond. तो क्या है ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड? इट इज फॉर्म्ड between atoms of two non-metallic elements by mutual sharing of three pairs of electrons amongst them. ठीक है? Atoms of two non-metallic elements, when they share three pairs of electrons, triple covalent bond is formed. And let me give you an example. Single example would be more than suffice. N2 nitrogen. So nitrogen के outermost shell में कितने electrons होते हैं पता है तुम्हें? 5 electrons. तो नाइट्रोजन बेचारा एक दिन बहुत परेशान था, मैं बहुत परेशान हूं. तो उसने बोला कि यार मेरे को आउटर मोस्ट शेल में तो मेरे पास 5 है, मुझे 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, कौन देगा? हाइड्रोजन से पूछा, मना कर दिया. ऑक्सीजन से पूछा, मना कर दिया. तो दूसरा एक नाइट्रोजन आया, उसने बोला यार मेरे से शेयर कर ले, मेरे को भी 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, हम लोग शेयर कर लेते हैं. हाइड्रोजन देखो अपने अपने बिरादरी में शेयर कर रहे हैं वो लोग, तुम भी करो यार मेरे साथ शेयर, हम लोग सेम है आखिर. तो बोलता है हाँ यार सही बात है. दे शेयर 3 pairs of electron each in their outermost shell and complete their stable electronic configuration, right? So this is basically a triple covalent bond formed between two atoms of nitrogen and the symbol is like this. ठीक है, नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल, नाइट्रोजन गैस है बेसिकली. ठीक है, तो ये सारे एग्जांपल्स थे टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड के. अब देखो और भी एग्जांपल्स है जो हम लोग टेक्स्ट बुक में देख सकते हैं. तो अब तुम्हें समझ तो गया होगा कि कोवलेंट बॉन्ड किसके बीच में बनता है, कब बनता है, कैसे बनता है. ठीक है, ये सब समझ गए तुम. अब ये कोवलेंट बॉन्ड में ना, अच्छा और एक चीज कुछ डेफिनेशन हमें मिस नहीं करनी है. डेफिनेशन है एक यहां पे. डेफिनेशन से पहले एक चीज बताऊंगा मैं तुम्हें. Some molecules have combination of single bond as well as double or a triple bond. For example, ethene C2H4 molecule has one double covalent bond and 4 single covalent bond. देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड है, लेकिन ये देखो सिंगल, ये देखो सिंगल, 4 सिंगल और एक डबल बॉन्ड. ऐसा भी होता है. इथाइन इथाइन इज C2H2, इसमें एक ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड है और 2 सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है. ये देखो कार्बन के बीच में ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड है और कार्बन और हाइड्रोजन के सिंगल कोवलेंट बॉन्ड. सो ऐसा भी सिचुएशन होता है बहुत बार. ठीक है, सो एक डेफिनेशन है यहाँ पे. डेफिनेशन क्या है देखो. कोवेलेंसी ऑफ एन एटम is the number of its electron taking part in the formation of shared pairs. Covalency of hydrogen is 1, for example, oxygen is 2, nitrogen is 3 and carbon is 4. तो यहाँ पे फॉर्मेशन बताया है, जैसे कि हाइड्रोजन का फॉर्मेशन बताया. देखो हाइड्रोजन का एटम, दूसरा हाइड्रोजन का एटम, दोनों आउटरमोस्ट शेल में 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं. ये इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, ये उसका सिंबल. क्लोरीन के बीच में भी सेम हो रहा है, देखो ये वाला, ये हमने ड्रॉ किया था ना, ये क्लोरीन का मॉलिक्यूल, ये उसका सिंबल. ठीक है, फिर नाइट्रोजन का हमने किया था, वाटर का किया था. हाँ, अमोनिया का देख लो. अमोनिया में नाइट्रोजन बीच में होता है, उसके आउटरमोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स है और वो हाइड्रोजन के साथ, 3 हाइड्रोजन के साथ अपने
इलेक्ट्रॉन्स एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयर करके स्टेबिलिटी अचीव कर लेता है, तो अमोनिया का मॉलिक्यूल बनता है। ये भी कोवेलेंट कंपाउंड है। 3 सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड से बनता है अमोनिया का कंपाउंड। फिर है कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड में क्या होता है, एक कार्बन अपने आउटर मोस्ट शेल के 4 इलेक्ट्रॉन एक एक क्लोरीन के साथ शेयर कर लेता है। क्लोरीन को तो एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए आउटर मोस्ट शेल में, तो जब क्लोरीन आउटर मोस्ट शेल के एक इलेक्ट्रॉन, 4 क्लोरीन अपने आउटर मोस्ट शेल के एक एक इलेक्ट्रॉन एक कार्बन के चारों आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स के साथ शेयर करता है और 4 सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, तो उसको बोलते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड। 4 सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड से बनता है CCl4। मीथेन, मीथेन में क्या होता है, CH4। कैसे बनता है मीथेन, 4 हाइड्रोजन अपने एक एक इलेक्ट्रॉन 4 कार्बन के आउटर मोस्ट शेल के एक एक इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर होकर 4 सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। दैट्स अ मीथेन फॉर यू। ठीक है, अब यहाँ पे एक छोटा सा कंपैरिजन किया वो लोगों ने इलेक्ट्रोवैलेंट और कोवेलेंट कंपाउंड के बारे में। तो उनके नेचर, उनके बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट, उनकी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टिंग नेचर, उनका आयोनाइजेशन इन सोल्यूशन, उनका डिसोसिएशन, उनकी सल्यूबिलिटी और उनका रेट ऑफ रिएक्शन, ये सब मतलब कितने पॉइंट्स है, 7 पॉइंट्स। ये तुम्हारी बुक में भी रहेंगे, इवन दो इफ यू हैव विराफ दलाल, आई थिंक विराफ दलाल में भी है ये डिटेल्स। इसको प्लीज एक बार तुम स्टडी करना, इसको स्टडी करना। जो जो मैंने चीजें अभी तक डिटेल में समझाई है, ये सारी चीजें यहां भी डिस्कस की। ठीक है, तो व्हाट आई वांट इज यू टू गो थ्रू इट। मैं जब होमवर्क भेजूंगा मैं ये टेबल भी साथ में भेज दूंगा, ठीक है, ताकि कोई क्वेश्चन अगर इसमें से हो तो तुम डायरेक्टली इसको रेफर करके लिख सकते हो। फाइनल चीज क्या हमें पढ़नी है, कुछ कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स और उनके स्ट्रक्चर की बात की है। जैसे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का जो स्ट्रक्चर होता है वो डुप्लेट होता है, मतलब आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं जब हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बनता है। ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का इफेक्ट भी बताया, हाइड्रोजन के बारे में और कुछ बोला नहीं है, लेकिन इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑन इलेक्ट्रोवैलेंट एंड कोवेलेंट कंपाउंड बोला है। अब अगर इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड जैसे कि सोडियम क्लोराइड, उसका एक्वस सोल्यूशन लेके हम लोग उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, तो इट विल कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट, इट विल कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट, इट विल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, बट इफ यू पास you know why it conducts electricity, why sodium chloride conducts electricity, because it has ions, it is made up of ions। ठीक है, और ये आयंस कैसे माइग्रेट होते हैं कहां पे, ये हम इलेक्ट्रोलिसिस चैप्टर में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। लेकिन यहां पे हमने पढ़ना ये है कि कोवेलेंट कंपाउंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं कि नहीं, नहीं करते, बिकॉज दे डू नॉट कंटेन फ्री आयंस। ओनली फ्यू पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स दे फर्निश आयन by the process of ionization, but most of the other covalent compounds like distilled water, sugar solution, alcohol, chloroform, benzene, petrol, ये सारे covalent compounds, they do not conduct electricity because they do not contain ions, they contain only molecules।